إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے انہیں اس بات کی تلقین کی ہے، انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر وہ انہیں اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی تلقین اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ انہیں فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اسی طرح سے تم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ.
وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا، اللہ رب العالمین کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ایسے فرشتے وہاں پر بھی مسلط ہوں گے، اور پھر وہ ایسے فرشتے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، یعنی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جس بات کی تعلیم دی ہے اور جس بات کا حکم دیا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ حاضرین گرامی، اولاد ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے اولاد مل گئی گویا کہ اسے ایک بہت بڑی نعمت مل گئی، اور جو اولاد سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گیا ہے، اور اسے اس محرومی کا احساس پوری زندگی تڑپاتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گھروں کی زینت یہ اولاد ہیں، معاشرے کی زینت یہ اولاد ہیں، خاندان کی زینت یہ اولاد ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کے تعلق سے، اولاد کے متعلق قرآن مجید نے دو نظریہ پیش کیا ہے۔ کچھ آیتیں قرآن مجید کی ہمیں اس طرح سے مل جائیں گی جس میں اولاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولاد یہ تمہارے لیے نعمت ہیں۔ قرآن مجید آپ دیکھیے 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں سے کہیے کہ توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، تم استغفار کرو، اور استغفار کرو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ تم استغفار کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے لیے بارش نازل کرے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے، تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دوسری نعمت جو تمہیں دے گا وہ مال کی نعمت ہوگی، تمہیں اللہ رب العالمین مال دے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے کہا تم استغفار کرو گے اس کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں اولاد دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گویا کی اولاد کو ایک بطور نعمت بتلایا ہے کہ یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے یہ نعمت ہے۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کو فتنہ کہا ہے اور اسی اولاد کو آزمائش کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارے
माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए आजमाइश है। और एक तीसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी सराहत के साथ कह दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे औलाद ये तुम्हारे दुश्मन हैं। फहज़रूहुम, जिंदगी में तुम उनसे आगाह रहो, जिंदगी में तुम उनसे मुतनब्बे रहो। अब आप देखिए कुरान मजीद के अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक तरफ औलाद को नेमत करार दिया गया है और दूसरी तरफ औलाद को फितना और आजमाइश कहा गया है। अब ये औलाद नेमत कैसे बनेगी, ये औलाद फितना और आजमाइश कैसे बनेंगे, इसमें वालिदैन का ये एक बहुत बड़ा किरदार होता है। इसलिए कि अगर औलाद आपके लिए नेमत है, औलाद नेमत की तरह अगर आपके घर में है तो आपकी जिंदगी का वो गोया कि सुकून है। लेकिन यही औलाद अगर बिगड़ जाए, फितने की शक्ल इख्तियार कर ले, तो आप ये समझिए कि वालिदैन के लिए अब दूसरे अजाब की जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। न सुबह में सुकून है, न दोपहर में सुकून है, न रात में सुकून है। औलाद अगर बिगड़ गई, औलाद का अकीदा नहीं सही है, औलाद और इसी तरीके से उसका कैरेक्टर नहीं सही है, तो वालिदैन पूरी जिंदगी परेशान होते हैं। तो औलाद ये नेमत कब बनेगी और ये औलाद फितना कब बनेगी, इसमें वालिदैन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, इसमें वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उनकी ये जिम्मेदारी औलाद के तई बचपन से शुरू होती है। घर में औलाद हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का चूंकि हुक्म है कि बच्चा तुम्हारे यहां पैदा हो गया है, अब तुम्हारी सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करो। अगर लड़का पैदा हुआ है तो उसके लिए आप 2 जानवर ज़बा करो, अगर लड़की पैदा हुई है तो आप उसके लिए 1 जानवर ज़बा करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि हर बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां एक गिरवी के तौर पर रखा रहता है जब तक उसका अकीका ना कर दिया जाए। तो ये वालिदैन की सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी ये है उसकी वालिदैन की जो अपने औलाद की तरबियत करना शुरू करेंगे, तो तरबियत का जो मरहला शुरू होता है उसमें से सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने औलाद का 7वें दिन अकीका करें। उमूमन होता यह है कि बहुत सारे लोग इसमें सुस्ती और गफलत का शिकार हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ठीक है अकीका हम लोग अगर 7वें दिन नहीं कर सके हैं, या जानबूझ करके कि अगर हमारे फला रिश्तेदार अभी घर पे आए नहीं है, या फला हमारा भाई है, या हमारे फला खानदान के लोग अभी आए नहीं है, तो उनके इंतजार में 7वें दिन छोड़ देते हैं और फिर अकीका नहीं करते हैं। आपने 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका नहीं किया, गोया कि आप एक बहुत बड़ी सुन्नत आपने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 7वें दिन अकीका करो। लिहाजा अगर साहिब इस्तिताअत, अगर किसी के पास पैसा है, जानवर वो खरीद सकता है, उसकी जिम्मेदारी यह है कि 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका करे। और दूसरी जिम्मेदारी वालिदैन की है कि बच्चे का अच्छा नाम रखें। नाम का असर बच्चों पर पड़ता है, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी यह है कि जब बच्चे का नाम इंतखाब करें तो एक अच्छा नाम हो। बसा औकात आदमी ऐसे नामों को तलाशता है या इसी तरीके से ऐसे नाम रखने की कोशिश करता है जो शिरकिया नाम होते हैं। वो नहीं समझ पाता है, अपने बच्चे का नाम शिरकिया नाम रख देता है। अब्दुल नबी नाम रख दिया, अब्दुल रसूल नाम रख दिया, अब्दुल काबा नाम रख दिया, तो ये सब शिरकिया नाम है। ऐसे नामों से बचना चाहिए। और बसा औकात बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहती है कि बहुत सारे नाम हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो हम अपने बच्चे का ऐसे नाम का इंतखाब करेंगे जो किसी ने नहीं रखा है। फिर उसके बाद फिर हजारों नाम, लाखों नाम फिर गूगल से सर्च करके पूरी लिस्ट निकालते हैं और फिर उसमें चुनते हैं और फिर इस तरह से उसमें पता नहीं कितने वक्त लगा देते हैं कि हम अपने बच्चे का ऐसा नाम रखेंगे जो किसी ने इस दुनिया के अंदर नहीं रखा। ऐसे नाम की तलाश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अहब्बुल अस्मा इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो सबसे महबूब नाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो सबसे पसंदीदा नाम है, वो अब्दुल्ला
عبداللہ ہے, عبدالرحمان ہے, لہٰذا تم اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھو, عبدالرحمان رکھو. یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ نام ہے. یا ان ناموں کے علاوہ ایسے نام ہے, صحابی کا نام ہے, صحابیات کا نام ہے, ایسے ناموں کا اختیار کرنا چاہیے جو معنی کے اعتبار سے اچھے ہو. لڑکے کا لڑکا ہے تو کسی صحابی کا نام ہو, لڑکیاں ہیں کسی صحابیات میں آپ کسی کا نام رکھ لیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نام اگر اچھا ہے, نام کا معنی اگر اچھا ہے تو اس کا اثر اس کے بچوں, اس کی زندگی پر پڑتا ہے. سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سید التابعی ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دادا کا نام حزن تھا, اور حزن کا مطلب ہوتا ہے رنج و غم. سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے دادا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے نام کا مطلب چونکہ اچھا نہیں ہے, حزن کا مطلب ہوتا ہے رنج و غم, لہٰذا تم اپنا نام بدل دو. تو سید ابن مسیب کے دادا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام رکھ دیا تو اب اس عمر میں کیا بدلوں, جو نام رکھا ہے رہنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً ان سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ چاہو تو اپنا نام بدل سکتے ہو. انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا, کہا ماں باپ نے رکھ دیا تو اب جانے دیجئے. سید ابن مسیب جو تابعی ہیں, ان کا کہنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے دادا اپنا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے تبدیل کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. آج میں اپنی زندگی کے اندر رنج و غم محسوس کر رہا ہوں. یہ بعد میں یہ تابعی ہے سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ اگر دادا نام بدل دیے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رنج و غم نہ ہوتا. تو بچے کا نام بہت ہی سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے کہ اس کے نام کا معنی جو ہو اچھا نام ہو, اور نیا نام, فیشنو نام جو فیشن کے طور پر لوگ ایک دوسرے کا دیکھ کر رکھ لیتے ہیں تو بچے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. یہ والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے والدین کی اولاد کے تئیں اس کی تربیت کا جو سفر شروع ہوتا ہے کہ بچہ اگر چھوٹا ہے اور پھر وہ بچے کی عمر جب ہوتی ہے کہ جب وہ بولنے لگتا ہے, جب وہ بولنے کی شروعات کرتا ہے, اولاد والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو لا الہ الا اللہ سکھائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اسے سکھانا چاہیے, اور بچہ جب بولنا شروع کر دیا ہے تو پھر اس کو کلمہ سکھانا چاہیے. اور جو کلمہ بچہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بچے سے, ایسے والدین سے خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ الذی یقرأ القرآن ویتتعتہ, کہ ایک وہ بندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کے زبان میں لکنت ہے, وہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے, اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے زبان میں پریشانی ہونے کی وجہ سے, اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو ڈبل اجر دے دیتا ہے. زبان میں لکنت کرنے کی وجہ سے وہ قرآن نہیں صحیح سے پڑھ سکا ہے, اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے, اللہ رب العالمین ایسے بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اسے پڑھنا نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود کوشش کر کے وہ پڑھ رہا ہے. تو اسی طرح سے وہ بچہ جب وہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار یا اپنی زبان سے وہ صحیح سے نہیں ادا کر سکتا ہے, چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے, والدین اسے سکھا رہے ہیں, والدین اسے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, اسے سکھا رہے ہیں, ایسے موقع پر جب وہ بچہ تتلا کر کے اور لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے والدین سے زیادہ خوش ہوتا ہے, اس بچے سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے بچوں کے صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اسلام کے اندر صحت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسلام نے صحت اور تندرستی کے تعلق سے زور دیا ہے, اس کی تعلیم دی ہے. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے یا اس سے پہلے عربوں کا جو رواج تھا, عربوں کے ہاں ہوتا کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو لوگ 1 سال کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 8 مہینے کے لیے شہر سے گاؤں بھیج دیتے تھے.
उनका मकसद क्या होता था? उनका मकसद ये होता था कि शहर से गांव की तरफ जब उस बच्चे को हम मुंतकिल करेंगे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो जो गांव की औरतें होती हैं उनके अंदर शुजाअत होती है, बहादुरी होती है, तो हमारा बच्चा उन गांव की औरतों का जाकर के जब दूध पिएगा तो उसकी सेहत अच्छी होती है। उनका अपना एक रवाज था जो करते थे, और उसी का देखा देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेज दिया गया। हलीमा सादिया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ महीने रह करके उन्होंने दूध पिया। तो उन लोगों का मकसद क्या था? उन लोगों का मकसद ये था कि उनका बच्चा या उनकी औलाद सेहत और तंदुरुस्त रहे। तो इस्लाम के अंदर भी सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत बताई गई है। लिहाजा वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने छोटे छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। और इसी तरीके से और एक बात और याद रखें, वालिदैन की जो जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, कि जिस तरह से इंसानों की नजर बच्चों पर लगती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसी तरीके से शैतानों की भी नजर उन बच्चों पर लगती है। लिहाजा शैतानों से हिफाजत, अपने बच्चों से शैतानों से हिफाजत कीजिए। कैसे आप शैतानों की हिफाजत करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मगरिब की अजान का वक्त शुरू होता है तो शैतान मुंतशिर हो जाते हैं। शैतान का पूरा जमघटा वहां पर आता है और वो पूरे इलाके में शैतान मुंतशिर हो जाते हैं। तो उस वक्त जो छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं, शैतान उन पर हमला करते हैं, उनके अकीदे पर हमला करते हैं और इसी तरीके से उनके ऊपर अटैक करते हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो इंसान जब उसे देखता है तो उसे नजरें बद लग जाती है, इसी तरीके से शैतानों की भी नजरें बद लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की, वालिदैन को ये जिम्मेदारी दी है, उन्हें यह हुक्म दिया है कि मगरिब की अजान के बाद से लेकर के इशा के दरमियान तक आप अपने छोटे बच्चों को घर में कैद रखें। छोटे छोटे बच्चों को मगरिब की अजान के बाद बाहर ना निकाले। शैतान का फैलाव होता है, उस वक्त शैतान बच्चों पर अटैक करता है, हमला करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। और ऐसे मौके पर अगर इस तरह से बच्चों के अंदर अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के मामलात हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि दुआओं का एहतमाम करें, अपने बच्चों को दम किया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि आप हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मगरिब के बाद या कभी किसी और मौके पर बुलाते थे और उन्हें दम किया करते थे। कहते थे उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को दम करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा करते थे कि देखो मैं अपने नवासों को जिन दुआ के जरिए से दम कर रहा हूं ताकि ये मेरे दोनों नवासे इन पर शैतान का अटैक ना हो सके, इन्हें नजरें बद ना लगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इसकी सुन्नत है। ये तुम्हारे दादा, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी इन्हीं दुआओं के जरिए से दम किया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को गोया कि एक जिम्मेदारी दी है जो उनकी तरबियत में शामिल है कि आप अपने बच्चों को भी इन दुआओं को याद कराएं और खुद जरूरी नहीं है कि दूसरों के पास दम कराने के लिए ले जाएं, बल्कि आप इन दुआओं को खुद याद कर लें और छोटे छोटे बच्चों को पढ़कर आप दम किया करें। रोजाना दम नहीं कर, रोजाना कभी मगरिब के बाद या कभी असर के बाद या जब भी मौका मिले आप अपने बच्चों को इन दुआओं का एहतमाम खुद पढ़ करके दम किया करें। इससे बच्चों की नजर की हिफाजत होती है, इंसानों की नजर से भी वो महफूज रहता है और शैतानों की नजर से भी महफूज रहता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। इसी तरह से वालिदैन की एक जिम्मेदारी और है औलाद की तरबियत के सिलसिले में कि बच्चा जब 7 साल की उम्र का हो जाए, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उसे नमाज का हुक्म दे, खुद मस्जिद में आए पढ़ने के लिए, खुद नमाज की पाबंदी करें और बच्चे को नमाज पढ़ने के ताल्लुक से कहें। और जरूरी नहीं है कि ये 7 साल, अगर 7 साल से पहले भी अगर वो बच्चा समझने लगता है, उसे कुछ दुआओं का वो एहतमाम करने लगता है, तब बतौर आदत उसे अपने साथ मस्जिद में लेकर के आए और अपना खुद नमाज पढ़े। और बच्चा जब आपको देखेगा कि आप नमाज की पाबंदी कर रहे हैं तो फिर वो बच्चा आपके देखा वो भी नमाज की पाबंदी करेगा। ये शरीयत इस्लामिया ने
तालीम दी है, बच्चों की तरबियत वालिदैन को इस बात की तालीम दी है कि बच्चे को अगर बचपन से आप नमाज की आदत नहीं डालेंगे, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, तो ये बच्चा बड़ा होकर के फिर उसकी वो आदत नहीं रहेगी, तो नमाजों का एहतमाम नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब 10 साल की उम्र का हो जाए तो ऐसे मौके पर अगर आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, वो नहीं पढ़ता है, तो जहां सख्ती की जरूरत है आप वहां सख्ती भी कर सकते हैं, वहां सख्ती आप उसके साथ कीजिए। ये शरीयत इस्लामी आपको इजाजत दे रही है। हमारे असलाफ को देखिए, खुद सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के ताल्लुक से देखिए कि उनके वो इबादत के ताल्लुक से वो अपने बच्चों के अंदर रग़बत भी दिलाते थे, शौक पैदा करते थे। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे उनसे रोजा रखवाते थे, और वो बच्चे जब भूखे होते थे तो उनके सामने खिलौना पेश कर दिया करते थे, ताकि वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं खिलौने से खेलेंगे तो वो भूल जाएंगे अपने भूख को। इस तरीके से रोजा रखने की आदत हमारे असलाफ डाला करते थे। और यही नहीं बल्कि दीन के सिलसिले में और इसी तरीके से शरीयत इस्लामिया में हमारे असलाफ जो थे उनका भी मामला ये था कि बच्चों के अंदर तरगीबात का मतलब ये होता है कि आप बच्चों से ये कहें, अगर आप अपने बच्चों को दीन से जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दीन इस्लाम से जुड़े, तो हमारे असलाफ में इब्राहिम बिन अदहम का वाकया है जो बहुत ही इबादत गुजार एक है, रावी हदीस है। वो उनका मामला ये है कि कहते हैं कि मेरे अब्बा मुझे ये कहा करते थे कि तुम आज के दिन मुझे जितनी हदीसें याद करके सुनाओगे तो तुम्हें एक हदीस के बदले तुम्हें मैं 1 दिरहम दूंगा। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मैं छोटा था, बच्चा था, अब दिरहम के लालच में हदीसें याद करता था। कई एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं 5 हदीसें याद कर लिया ज़मानी। मैं अपने अब्बा से कहा कि आज मैंने 5 हदीसें याद कर लिए, लिहाजा आप मुझे इनाम दीजिए। तो 5 हदीसों के बदले उन्होंने 5 दिरहम दिया। तो बच्चों के अंदर इस तरह के शौक पैदा करना, रग़बत पैदा करना, आप अपने बच्चों को कह दीजिए कि आप जुमा का खुतबा सुन रहे हैं, आप जुमे के खुतबे में कोई 2 पॉइंट आप बताओ, वो बच्चा ध्यान से खुतबा सुनेगा, उसके बदले आपको इनाम मिलेगा। दर्स का एहतमाम हो रहा है, आप अपने बच्चे से कह दें कि जाइए आप दर्स में बैठिए और सुनिए, पूरा दर्स आप सुनिए, और उस दर्स में 2 हदीसें आपने क्या समझा, या कोई 2 हदीस या कोई 2 अहम बातें बताओ, आपको इतना पैसा इनाम में मिलेगा। वो बच्चा मस्जिद के अंदर आएगा, ध्यान से सुनेगा सारी बातें, इसलिए कि वो भी छोटा बच्चा है, उसके ज़हन में ये होगा कि अगर मैं ये चीजें बता दूंगा तो उसमें मुझे इनाम मिलेगा। तो ये हमारे असलाफ का तरीका है कि बच्चों को दीन से जोड़ने के लिए, मस्जिदों से जोड़ने के लिए इन चीजों का एहतमाम रखते थे, इनामात रखते थे। बच्चे आगे बढ़ करके आकर के इन सारी चीजों का एहतमाम करते थे, फिर अपने घर पर अपने वालिदैन को वो चीजें सुनाते थे, उसके बदले उन्हें इनाम मिलता था तो वो खुश होते थे। ये तरबियत का एक तरीका है, दीन से जोड़ने के बच्चों का एक तरीका है। इसी तरीके से वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों पर बेजा सख्ती ना करें। सख्ती और तशद्दुद, बात बात पे डांटना, बात बात पे मारने की कोशिश करना, या इसी तरीके से हमेशा उनके साथ सख्ती का मामला करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते थे। आज हमारे माहौल में, हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर ये चीजें देखने सुनने में आती है कि बच्चा अगर छोटी सी गलती भी कर देता है, बाप उसे पीटने लगता है, माँ उसे मारने लगती है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के बेजा तशद्दुद करना, उसे मारना, बात तो वालिदैन अपने बच्चों को गालियां भी देते हैं। इन चीजों से परहेज करना चाहिए, इसलिए कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बेजा सख्ती करेंगे, उसे मारेंगे और मारने का आदत बना लेंगे, हर छोटी छोटी गलती पर अगर आप अपने बच्चों को मारेंगे तो ये बच्चा बड़ा होकर बागी बन जाएगा, आपके खिलाफ वो बगावत करेगा। वो सारी बातें मुझे वो याद आएंगी कि जब मैं छोटा था तो मेरा बाप या मेरी माँ किस बेरहमी के साथ हमें पीटा करती थी। तो अगर आप अपने बच्चे पर बेजा सख्ती कर रहे हैं, उसे मार और पीट रहे हैं, तो गोया कि आप अपने बच्चों को बागी बना रहे हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों की कैसे तरबियत करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन के साथ जा रहे थे, हजरत हसन को लेकर के जा रहे थे। हजरत हसन छोटे हैं, उन्होंने रास्ते में एक खजूर पड़ा हुआ था, हजरत हसन खजूर उठाए और खा लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ
हालात में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन से कहा कि इसे तुम फेंको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह से निकाल करके वो खजूर फेंक दिया और हजरत हसन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से कहा कि देखो ऐ मेरे बेटे, अहले बैत पर यानी नबी के घराने पर सदका हराम है। यानी ये कंफर्म तो नहीं है कि ये खजूर जो तुमने उठाकर खाया है, ऐसा भी मुमकिन है कि ये सदके का खजूर हो, तो तुमने खा लिया तो सदका हमारे ऊपर हराम है, हम लोग सदका नहीं खा सकते हैं, लिहाजा तुम इस खजूर को ना खाओ, इसलिए कि मुझे इस सिलसिले में इल्म नहीं है कि ये खजूर सदके का है या सदके का नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने आसानी से समझा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को मारा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को डांटा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि एक तालीम हजरत हसन को दे दी। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बचपने में हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आए, एक प्लेट में खाना रखा हुआ था, कई लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, तो मैं अपने हाथ को कभी इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता, कभी खाना यहां से निकालता, कभी वहां से निकालता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा को बड़े ही प्यार से समझाया और कहा कि ए बच्चे, तुम बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ, वो खाना जो तुम्हारे करीब है तुम उससे खाओ। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा को समझाया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत का तरीका था, उस तरीके को इख्तियार करने की जरूरत है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, मेरी माँ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले उनको कर दिया हजरत अनस को। जाहिर सी बात है हजरत अनस छोटे हैं, छोटे से बच्चे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रह रहे हैं, जाहिर सी बात है गलतियां क्यों नहीं करेंगे। छोटा बच्चा गलती करता है, वो भी गलतियां किए होंगे, लेकिन अबू दाऊद की रिवायत है कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी ये तक नहीं कहा तुमने ये काम क्यों किया या तुमने ये काम क्यों नहीं किया, यानी गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक उफ तक नहीं किए। ये तरबियत का तरीका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बच्चों को डांटते थे, ना मारते थे, या इसी तरीके से उनके साथ बेजा तशद्दुद करते थे, सख्ती करते थे। ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं थी। वैसी तरबियत अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत कैसे करते थे। इसी तरह से आप देखिए, वालिदैन अपने औलाद की जो तरबियत करते हैं तो उसमें वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अपने औलाद की फिक्र दुनिया से ज्यादा आखिरत की होनी चाहिए, कि उनका बच्चा दुनिया में कामयाब होने के साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाए, ये फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। दुनिया में आप अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, साइंसदा बनाएं, जो हो सके आप बढ़ाइए। शरीयत इस्लामिया आपको मना नहीं करती है कि आप दुनियावी पढ़ाई ना पढ़ाओ। शरीयत इस्लामिया आपको इजाजत दी है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपनी लड़की को भी डॉक्टर बनाइए, आप अपने लड़के को भी डॉक्टर बनाइए, आप अपनी लड़की को इंजीनियर बनाइए, आप अपने लड़कों को भी बनाइए। शरीयत इस्लामिया आपको इस सिलसिले में मना नहीं करती है, आप तालीम दीजिए। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे जो सवाल करेगा तो दुनियावी तालीम के बारे में सवाल नहीं करेगा कि तुमने अपने बच्चों को आला तालीम दुनियावी की क्यों नहीं दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे आपसे जो सवाल करने वाला है आखिरत के रोज, वो ये सवाल करेगा तुमने अपने बच्चों को तौहीद की तालीम क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का और इत्तिबाए रसूल का सबक क्यों नहीं पढ़ाया। क़यामत वाले दिन हमसे और आपसे ये सवाल होने वाले हैं। लिहाजा औलाद की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम का जो आप ख्याल रखें, उनमें से दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बच्चों को देनी चाहिए। तौहीद की तालीम है, इत्तिबाए सुन्नत की तालीम है, मोहब्बत रसूल की तालीम है, शरीयत की जो बुनियादी तालीम है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि कोई भी बाप अपनी बेटी से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता है जितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा से क्या करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, कि फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा का गम मेरा गम, फातिमा का रंज मेरा रंज, फातिमा का अलम मेरा अलम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। लेकिन वही हजरत फातिमा एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं
अपने घर में काम कर करके थक जाती हूं, चक्की पीसती हूं जिसकी वजह से मेरे हाथ में छाले पड़ जाया करते हैं। मैंने सुना है कि आपके यहां कुछ गुलाम आए हुए हैं, अगर एक गुलाम आप मुझे दे देंगी तो मेरे लिए राहत हो जाएगी, जो मैं इतनी तकलीफ और इतनी मशक्कत बर्दाश्त करती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक गुलाम दे सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा कि ए बेटी फातिमा सुनो, अगर तुम अपने घर में ज्यादा मेहनत करती हो, काम करके अगर थक जाया करती हो, तुम्हारे लिए मैं एक नुस्खा, एक वजीफा बता देता हूं कि सोने से पहले तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ करके अपने आप पे दम करके सो जाया करो, दिन भर की सारी थकान तुम्हें दूर हो जाया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफा और एक तरीका बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को दुनिया से ज्यादा, दुनिया की तकलीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के आखिरत के ताल्लुक से ज्यादा फिक्र करते थे। एक आदमी, एक वालिद, एक बाप अपने बच्चे को जिंदगी के अंदर अगर कोई घर दे देता है, कोई गाड़ी दे दे या कोई बड़ी से बड़ी रकम दे दे, तो ये उसके लिए कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं है। वालिदैन की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी आखिरत की फिक्र कर ले, उसकी आखिरत को संवार दे। ये उसके औलाद के लिए सबसे बड़ा इनाम है और ये फिक्र होनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं। अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं? कहते हैं ला तलबिसी ज़हब, कि मेरी बेटी तू सोना मत पहना कर। हालांकि औरतों के लिए सोना जायज है, औरतें सोना पहन सकती हैं, शरीयत इस्लामिया ने उन्हें इजाजत दी है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी को मना कर रहे हैं मत पहनो। उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी सोना और जेवरात को पहनकर औरतों के मजलिस में जब जाए तो कहीं तकब्बुर का न शिकार हो जाए। आमतौर पर होता यह है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें दीन की समझ नहीं होती है, शरीयत की समझ नहीं होती है और उनके अंदर अनानियत होती है, उनके अंदर तकब्बुर होता है कि जब वो जेवरात को पहनती हैं, सोने और चांदी को पहनती हैं, तो बसा औकात एक औरत की जब उनसे दुश्मनी होती है और वो अगर गरीब खानदान से होती है, उनके जहन में ये बात आती है कि आज मैं ये सारे जेवरात को पहन करके जा करके उस औरत की औकात याद दिलाऊंगी कि मेरे आदमी ने मुझे इतना जेवरात दिया या मेरे बाप ने मुझे ये सारी चीजें दिया। ये सारी चीजें अगर कोई औरत इस सिलसिले में ये सारे ख्यालात रख करके वो जेवर जो पहनती है तो वो जेवर उसके लिए वो अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी की कितनी फिक्र कर रहे हैं कि दुनिया में अगर वो जेवर नहीं भी पहनेगी तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो तकब्बुर का शिकार हो जाए, उसके जहन में कुछ इस तरह की बातें आ जाए तो कहीं उसकी बेटी की आखिरत ना बर्बाद हो जाए। तो वालिदैन की जिम्मेदारी यह है कि औलाद के तरबियत के सिलसिले में दुनिया से ज्यादा, दुनिया में तो तरबियत करना ही करना है कि उसकी दुनिया अच्छी बन सके, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस तरह से उसकी तरबियत करे ताकि उसकी आखिरत संवर जाए। तो ये चंद बातें थी औलाद के तरबियत के ताल्लुक से कि हमें अपने औलाद की फिक्र इस तरह से करनी चाहिए कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को एक जगह पर फितना कहा है और एक जगह पर नेमत कहा है। तो अगर हम अपने औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो वालिदैन के लिए वही औलाद उनके लिए नेमत बन जाएगी, लेकिन अगर तरबियत अच्छी नहीं करेंगे तो कुरान में जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को फितना कहा है तो वही औलाद उसके लिए फितने की शक्ल इख्तियार कर लेगी। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि जिस तरह से हम अपने तमाम मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रख करके हम काम करते हैं, तो तरबियत में भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रख करके अपने औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, ताकि औलाद की जिंदगी दुनियावी भी पुरसुकून जिंदगी बने सके और आखिरत में भी उसकी जिंदगी अच्छी बन सके, उसका बदला उसे जन्नत मिल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, सालिह बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन।